Yeah. So we were talking about uh, financial management. So in financial management, we have started with the fundamental aspect that the first part of financial management is analyzing the business and then taking decision whether I should start a particular business or not. And once you take that decision, then the next step which comes into picture is you decide what are the sources of funding available, and then you study what is capital structure and how the capital structure would be arranged, or how should I procure the funds. But first of all, I need to decide what is the business I'm supposed to start with. Huh? Any one of you is interested in starting up a business? Me. Okay, good. Hmm. So let us ask Anant a few questions. So, yes, Anant, have you decided which business you want to start with? Uh, kind of online shopping. Online shopping, or will you sell your own products, or you will market other companies' products Will market others. like an Amazon? Yes. Okay, okay. So now Anand has decided to start up a business, and what is his plan is he will start up an online venture wherein he will try to, or he will build a platform for online buyers, and that platform will link the sellers and buyers, and through which you can purchase and sell goods or services, right? Now, do you think Anand has directly one fine morning he was sitting at his house and suddenly this idea flashed in his mind? Huh? Suddenly this things happens, like business decisions? No. Huh? Idea may come in your mind, but what he must have done is he must have analyzed couple of options, or three, four options, or maybe 10, 15 options, and out of which he will decide to start this activity. और मे बी अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो इतना प्रैक्टिकली हम लोग कैलकुलेट करके या कल से बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे. हाँ, लेकिन अगर एक्चुअली में ऐसा टाइम आए कि अनंत इज गोइंग टू स्टार्ट हिज बिजनेस एक्टिविटी, कैन ही स्टार्ट सो कैजुअली, ओके चलो मैं ऐसे ये बिजनेस ट्राई करके देखता हूँ, कैन यू डू दैट? No, No, sir. you will have to study before, right? He must have studied a couple of projects, or तीन चार project वो decide करेगा, sorry, तीन चार business वो analyze करेगा, and then he will decide कि ये तीन चार business में से मुझे suitable business कौन सा है. Because see, every time a business may be a profit making business, but it may not be suitable to you. For example, modeling करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, but then am I in a position to do modeling, or will they select me as a model? That is the first question. Or a builder earns a good profit, percentage of profit is very high in case of building, but आपको सिर्फ एक 15 करोड़ 15 से 20 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगा टू स्टार्ट अप दैट एक्टिविटी. हाँ, अभी डू यू थिंक इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर एवरीवन और एवरी पर्सन कि सीधा वो 15-20 करोड़ का पैसा, मतलब 15-20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक साथ लेके आए? विल इट बी प्रैक्टिकली feasible? No, but for some of the people it may be yes, for some of the people the answer is no. So every business is not suitable for everyone, right? So it is depending on which activities you want to do, or which activities you want to get engaged. Accordingly, you will decide what is the business which you should start, right? तो जब भी हम लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे एक स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करना है, तो हम लोग क्या डिसाइड करते हैं? That we decide, okay, I'll start up an activity, and for starting up the activity we have to analyze the business plan, and this analysis of business plans is possible with the help of the capital budgeting. So capital budgeting helps you out to decide which business proposal is suitable according to your requirement. Huh? So accordingly, we will check what are the different methods available, and out of these methods available, which is suitable for you. So there are certain traditional techniques and there are certain modern techniques. तो ये ट्रेडिशनल या मॉडर्न टेक्निक्स दोनों है, तो उसमें हमें मेनली क्या देखना है? कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज कैसे आएगा, बराबर? तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स जो है which involves a payback period, then payback profitability and accounting rate of return. तो ये तीन टेक्निक्स ट्रेडिशनल टेक्निक्स में आता है. लेकिन यहाँ पे हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट नहीं यूज करेंगे, हम लोग सिर्फ क्या यूज करेंगे?
डायरेक्ट कैलकुलेशन का मेथड यूज करेंगे हम लोग, डिस्काउंटिंग विस्काउंटिंग वगैरह कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली आंसर इवेल्युएट करके डिसीजन ले लेंगे, राइट। हाँ, तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग ऑफ कैश फ्लोज या टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये कंसेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी जो मॉडर्न अप्रोचेस है, हाँ, तो मॉडर्न अप्रोचेस में डेफिनेटली यू आर गोइंग टू कंसिडर definitely you're going to consider what is the what is the time value of money and how you're going to evaluate the time value of money and the discounting of the cash flows. तो वो हम लोग सब किधर consider करेंगे? We will consider all those points in modern methods. तो modern method में आएगा discounted payback period, then NPV, that is net present value, then profitability index, ये सब कैलकुलेशन या IRR, ये जो भी सब कैलकुलेशन ये सब किधर आएगा? मॉडर्न टेक्निक्स में आएगा। तो दैट इज टाइम एडजस्टेड टेक्निक्स। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल टेक्निक्स के साथ। हाँ, तो फर्स्ट टेक्निक यू कैन से आउट ऑफ ऑल द लॉट, हाँ, ट्रेडिशनल मेथड्स में फर्स्ट मेथड है So ये शेयर करोगे ना? वर्ड फाइल में शेयर करूंगा आपके साथ। यस, सिर्फ फॉर्मूला आप लोग लिख लो, बिकॉज फॉर्मूला से हम लोग सम सॉल्व करने वाले हैं। बाकी आपने सब नहीं लिखा तो भी चलेगा। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला सिर्फ मैं आपको हाईलाइट करके रखता हूँ, वो सिर्फ आप लोग नोट डाउन करो। ओके ओके। ट्रेडिशनल मेथड्स, अभी ट्रेडिशनल मेथड्स क्या है? सो ट्रेडिशनल मेथड्स इज अबाउट a technique in which you are going to consider the cash flows and outflows, that's it। cash inflow कितना है, outflow कितना है, हम लोग decision making कर लेंगे। अभी ट्रेडिशनल मेथड में फर्स्ट मेथड है पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। अभी पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मतलब क्या? यहाँ पे हम लोग टोटल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को कंपेयर करेंगे। हाँ, जैसे एक रेगुलर नॉर्मल बिजनेसमैन का लॉजिक, हाँ, कि सपोज अनंत ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया एंड अनंत ने उसमें 10 लाख रुपए लगाया, तो अनंत के दिमाग में क्या रहेगा कि ये बिजनेस से कम 10 लाख रुपीस तो 10 recover लाख होना रुपीस से चाहिए। ज्यादा पैसा आना चाहिए कि मैंने 10 लाख डाला है बिजनेस में, तो बिजनेस शुड गिव मी मोर। सो अगर उसने बिजनेस से इनफ्लो दिया, बिजनेस ने उसके इनफ्लो दिया 14 लाख का, तो व्हाट यू कैन से 14 लाख इज इनफ्लो एज अगेंस्ट आउटफ्लो ऑफ 10 लाख, तो उसका पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी कितना रहेगा? दोनों का डिफरेंस। तो फॉर एग्जांपल ये 14 लाख है, जिसमें एग्जांपल ले रहा हूं, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। तो नेट, दोनों का नेट डिफरेंस कितना है? 4 लाख। So what you can see is payback profitability is 4 lakhs. And if the payback profitability is negative, that is an indicator कि ये business नहीं करना चाहिए. And if the payback profitability is positive, then the decision is this business should be undertaken by. हाँ? लेकिन जब भी हम लोग payback profitability multiple business के लिए देखेंगे, जब भी अनंत ने conclusion किया कि he will do online business, उसके बैकग्राउंड में क्या रहेगा? He might have tried 5-6 businesses. तो 5-6 बिजनेस में जिसका पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगा उसको सिलेक्ट करेंगे, या जिसका सबसे कम रहेगा उसको सिलेक्ट करेंगे? सपोज सपोज मेरे पास 5 बिजनेस प्रपोजल्स है, उसमें जिसका पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगा, ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा? उस प्लान को सिलेक्ट करूंगा। डू यू एग्री? बिकॉज ये इनडायरेक्टली इंडिकेट क्या कर रहा है? Yes. मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इज कंसर्न विद हाउ मच इज द कैश इनफ्लो एंड हाउ मच इज कैश आउटफ्लो, दोनों का डिफरेंस, दैट्स इट, नथिंग मोर नथिंग लेस। बट हाँ, पर जब भी पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हमारा आउटफ्लो कम है ना। तो आउटफ्लो कम है तो कैसा चलेगा? अरे आउटफ्लो ज्यादा ही आना चाहिए ना। शची, तुम्हें बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 9 लाख रुपए का ही रिटर्न चाहिए?
नहीं, ज्यादा ही होना चाहिए ना। हाँ हाँ, समझा 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 समझा। लॉस करायचं तिला. नहीं नहीं हाँ, you want a cup of tea in between? नो सर, No. मिला नहीं मुझे अभी तक, मिलेगा। अंडरस्टूड, अभी समझ में आया कि मैं जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ उससे ज्यादा मुझे इनफ्लो आना चाहिए ना। हाँ, मैंने it? वर्ड को गलत पकड़ा। हाँ, तो इनफ्लो आउट, देखो आउटफ्लो इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट। हमेशा याद रखो जब भी हम लोग आउटफ्लो की बात करते हैं तो आउटफ्लो का मतलब है इन्वेस्टमेंट। मैं बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट। सो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा मेरा इनफ्लो होना चाहिए, फ्यूचर का इनफ्लो जो बिजनेस से मिलेगा वो। लेकिन ये बिजनेस से इनफ्लो आपको नेक्स्ट 5 साल में मिल सकता है। यहाँ पे हम लोग 5 साल का टोटल कैश फ्लो लेंगे जो कि है 14 लाख, आउटफ्लो है 10 लाख, नेट कैश फ्लो, नेट आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिला 4 लाख का, तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिव है, तो हम लोग डिसीजन लेंगे कि यस इट इज गुड टू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस, राइट? यस और नो? यस। हाँ, yes sir. अभी when I'm calculating payback profitability, one aspect which I'm ignoring is I'm calculating payback profitability, but I'm not considering how much time. हाँ, अभी ऐसा हो सकता है ये कैश इनफ्लो एक ही साल में मिल सकता है, ये नेक्स्ट 3 साल में मिल सकता है, नेक्स्ट 6 साल में मिल सकता है। अगर दो बिजनेस है, एक बिजनेस में आपको यही कैश इनफ्लो एक साल में आपको 4 लाख मिल रहा है एंड दूसरा बिजनेस आपको 6 साल रन करके आपको 5 लाख मिल रहा है, तो आप सिर्फ फिगर देख के डिसीजन लेना, ये करेक्ट है क्या? एक बिजनेस ने 6 साल रन किया तो 6 साल का मिलके कैश इनफ्लो हुआ 15 लाख तो एंड इन्वेस्टमेंट 10 लाख है, तो उधर पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी कितना आया? 5 लाख है। आर यू गेटिंग इट? यस सर। हाँ सर. हाँ, तो ऐसा बिजनेस सिलेक्ट करोगे जहां पे एक साल में आपको 4 लाख मिल रहा है, या ऐसा बिजनेस सिलेक्ट करोगे जिधर आपको 6 साल में 5 लाख मिल रहा है? एक साल में 4 लाख. एक साल में 4 लाख मिलने वाला, करेक्ट? हाँ, तो यहाँ पे इसके लिए पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट 100% appropriate method to just determine the profit, because ये मेथड क्या कर रहा है? इनफ्लो कंसिडर कर रहा है लेकिन टेन्योर कंसिडर नहीं कर रहा है। जो कंसिडर हुआ है आपके नेक्स्ट मेथड में, दैट इज पेबैक पीरियड मेथड। हाँ, पहला मेथड सबको समझ में आया? यस। हाँ, अभी नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट मेथड क्या है आपके लिए? नेक्स्ट मेथड इज पेबैक पीरियड मेथड। अभी पेबैक पीरियड मेथड का मतलब है हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग फॉर रिकवरिंग द इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इज नोन एज अ पेबैक पीरियड। हाँ, अभी उसका मतलब है कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टमेंट कितने ड्यूरेशन में मुझे वापस मिल जाएगा, दैट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ, आई डोंट नो, ठीक है, which is calculated with the help of payback period। कि अनंत ने सपोज 10 लाख रुपया बिजनेस में डाला तो उसको पता होना चाहिए ना 10 लाख कितने पीरियड में वापस मिलेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं? पेबैक पीरियड निकालते हैं। हाँ, तो सपोज पेबैक पीरियड 3 साल है, उसका मतलब क्या है? जो भी पैसा मैंने बिजनेस में डाला है उसको रिकवर करने के लिए मुझे कम से कम 3 साल रुकना पड़ेगा, एंड दैट इज नोन एज पेबैक पीरियड। So payback period is nothing but the duration which is required for investment to be returned back to the investor। कि अगर मैंने 10 लाख रुपया डाला तो कितने साल में मुझे वापस मिलेगा? तो वो मिलेगा मुझे पेबैक पीरियड से। अभी पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो फॉर्मूलाज हैं, तो वो दो फॉर्मूलाज कौन सा है देखते हैं हम लोग। पहला फॉर्मूला जहां पे आपका कैश इनफ्लोज यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कैश इनफ्लोज है मतलब क्या? एवरी ईयर जो आपको कैश इनफ्लो मिल रहा है वो कांस्टेंट है। हाँ? तो इनफ्लो अगर कांस्टेंट है तो फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख, सॉरी 10 लाख, एंड पर एनम कैश इनफ्लो है 4 लाख, मतलब आपको 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख ऐसे मिलते रहेगा। तो पेबैक पीरियड कितना? अभी यहाँ पे कैश इनफ्लोस पर एनम क्या है? सेम है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टेड अपॉन एनुअल एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स नेट कैश। अभी आफ्टर टैक्स नेट कैश इनफ्लो आपको कितना मिला? तो यू हैव रिसीव्ड अ कैश इनफ्लो ऑफ रुपीज
4 lakhs. तो 10 लाख आपको इन्वेस्टमेंट, 10 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया, 4 लाख आपको हर एक साल मिल रहा है, तो टोटल कितना टाइम लगेगा आपको? 2.5 years लगेगा 2.5 years. टू रिकवर द इन्वेस्टमेंट. मतलब सिंपली क्या करना है, 10 लाख अपॉन 4 लाख, दैट इज 2.5 years. So I will need 2.5 years to recover the investment. Is this point clear? सर ये पेबैक पीरियड हम लोग कंफर्म बोल सकते हैं, इट्स टेंटेटिव? टेंटेटिव. देखो हम लोग जब भी कैश इनफ्लोज बोलते हैं ना, तो हम लोग गारंटेड कैश इनफ्लोज बोल सकते हैं क्या कि हर एक साल नहीं. में 4 लाख मिलेगा ही? नहीं. नो. टेंटेटिव फिगर रहता है, बट एक टेंटेटिव हम लोग रफ अंदाजा रहता है कि ये बिजनेस से मुझे कितना इनफ्लोज मिलते रहेगा. अकॉर्डिंगली यू कैलकुलेट द आंसर. ओके. तो टेंटेटिव फिगर है, लेकिन ये टेंटेटिव फिगर्स क्या इंडिकेट करता है? आपको बताता है कि आपने 10 लाख रुपए डाला तो सही, लेकिन आपको 2.5 साल रुकना पड़ेगा टू गेट बैक दिस अमाउंट. आर यू रेडी फॉर इट? सी देयर विल बी सम इन्वेस्टर्स हु विल बी रेडी फॉर इट. कोई इन्वेस्टर बोलेगा मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे पास और 15 करोड़ पड़ा है. बट देयर विल बी पीपल हु विल से नहीं नहीं, मुझे 1-1.5 साल के अंदर पैसा वापस चाहिए. तो उनके लिए ये 2.5 साल का प्रोजेक्ट फायदेमंद रहेगा क्या? बताओ कि मुझे 1.5 साल में ये रिटर्न चाहिए. हाँ, पैसा 10 लाख रुपए. नहीं तो सर, डिले हो जाएगा. करके फायदा है क्या? नहीं, बिकॉज मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन 1.5 साल बाद मुझे पूरा अमाउंट वापस नहीं मिलेगा. कितना मिलेगा? जितना प्रॉफिट है उतना ही. पहले साल में 4 लाख मिला, नेक्स्ट साल आधा हो गया, फिर भी 6 लाख ही होगा, पूरा पैसा वापस नहीं मिलेगा मुझे. हाँ, तो इसके लिए हमें कंसिडर करना है कि पेबैक पीरियड रफली कितना आता है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल टेक डिसीजन. एंड ऑब्वियसली सपोज मैंने 3-4 प्रोजेक्ट को कंपेयर किया पेबैक पीरियड को, तो आइडियल पेबैक पीरियड ऐसा कुछ रहता है नहीं कि ये सबसे अच्छा पेबैक पीरियड. भी देखो जितना कम, जितना फटाफट मिलेगा उतना अच्छा है. मैं बोलूंगा आज इन्वेस्ट करो, आज ही डबल होके पैसा मिलेगा तो सबसे अच्छा है, बट इसको कुछ मतलब नहीं है बोलने का. तो पेबैक पीरियड हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है फॉर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, एंड जो प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड सबसे ज्यादा रहेगा उसको सिलेक्ट करेंगे, या कम रहेगा उसको सिलेक्ट करेंगे? जो कम रहेगा पेबैक पीरियड. यस. क्यों? वो उतना ही कम में हमें उतना रिटर्न्स मिल रहा है. एग्जैक्टली. मैं आज 10 लाख रुपए डालूंगा बिजनेस में, तो सपोज ये बिजनेस मुझे 2.5 साल में पैसा वापस दे रहा है. प्रोजेक्ट दूसरा सेकंड प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड आया 1 ईयर 1.6 ईयर्स. हाँ, तो उसका मतलब क्या है, लगभग 1.5 साल में मुझे पैसा वापस मिल जाएगा. तो ऑब्वियसली कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है? 1.5 साल में वापस मिलना अच्छा है या 2.5 साल में वापस मिलना अच्छा है? 1.5 साल. 1.5 साल में. तो पेबैक पीरियड के लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा? विचएवर इज लोअर. एंड पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा? विचएवर इज हायर. यस. ओके. तो ये पॉइंट समझ में आया, कैश इनफ्लोज और यूनिफॉर्म वाला. बट हमेशा हाँ सर पर ये जो वो थोड़ी ना कंफर्म 4 लाख की मिलेगा उसको. बराबर. तो अगर कंफर्म 4 लाख नहीं मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? नॉट यूनिफॉर्म वाला. नॉट यूनिफॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. नॉट यूनिफॉर्म वाला फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे हम लोग देखते हैं. एक छोटा प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिससे आपको क्लैरिटी आएगा. देखो 20 लाख रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट किया, एंड ये बिजनेस मुझे रिटर्न्स दे रहा है 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 4 लाख. सो कुल मिला के 29 लाख रिटर्न दे रहा है. तो यहाँ पे मुझे पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी भी निकालना है, पेबैक पीरियड भी निकालना है. पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगा? टोटल इनफ्लो प्लस आउटफ्लो. टोटल इनफ्लो इज 29 लाख. टोटल आउटफ्लो कितना है? 20 lakhs. 20 लाख. तो नेट कितना आएगा? पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी कितना आएगा? 9 lakh. दैट्स इट. तो पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी मुझे मिल गया 9 लाख, एंड पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिव है, तो इट इज अ गुड इंडिकेटर फॉर द इन्वेस्टमेंट. तो इज इट यू कैन से recommendable to invest in this project? Yes. Yes, because its payback profitability is positive. अगर मल्टीपल बिजनेस रहेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे?
जिसका पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा आएगा उसको सिलेक्ट करें। ऑलराइट, हाँ सर। लेकिन कैश इनफ्लोज आप ऑब्जर्व करोगे तो ये यूनिफॉर्म है क्या? नो। नो। हाँ, तो हमें ऑब्वियसली ये फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स नेट कैश फ्लो। हाँ, ये फॉर्मूला अगर यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अभी वो फॉर्मूला क्या है वो हम लोग देखते हैं पहले। देखो फॉर्मूला क्या है, इन्वेस्टमेंट अपॉन cumulative cash flow, sorry, investment minus cumulative cash inflow of base year upon cash inflows of next year। अभी ये सब जानने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कैसे निकालते हैं। ये तो आपको पता रहेगा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कैसे निकालते हैं, बताओ कैसे निकालेंगे? 4 लाख पे निकालेंगे, 6 लाख पे निकालेंगे, पर वो 6 लाख में ऑलरेडी 4 लाख इंक्लूडेड है। हाँ, ये कितना आएगा? पहले साल 4 लाख, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का मिलके 10 लाख। 10 लाख। 17 लाख। हाँ, अभी ये 17 लाख आया, बट अभी मुझे बताओ, मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट वापस मिल गया क्या अभी तक? नहीं, नहीं। हाँ? 20 lakhs नहीं आया। नहीं आया 20 लाख मीन स्टिल आई नीड सम टाइम टू रिकवर माय इन्वेस्टमेंट। फोर्थ ईयर में कितना है? 25। 25। फिफ्थ ईयर में कितना? 29। Right? तो आपका जो टोटल है ये टोटल एंड आपका क्यूमुलेटिव का फाइनल आंसर ये दोनों सेम आना चाहिए। वो तो आएगा ही, बट किधर गलती ना हो इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम लोग ये कर सकते। यहाँ तक समझा? हाँ सर। हाँ सर। अभी एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें देखना है कि कौन से 2 साल के बीच में आपका 20 लाख कंप्लीट हो गया। Fourth। Between which 2 years you completed your returns? थर्ड एंड Completed फोर्थ। third and fourth, correct? क्यों? ये दोनों के बीच में 20 लाख आएगा। हाँ। हाँ? तो I'll say my थर्ड एंड फोर्थ ईयर के बीच में मेरा इन्वेस्टमेंट वापस मिल गया। डू यू एग्री? अभी ये दोनों में से जो फर्स्ट ईयर है इसको हम लोग बेस ईयर पकड़ेंगे। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका बेस ईयर एंड अकॉर्डिंगली हम लोग आगे आंसर निकालेंगे। मतलब देखो 3 साल तो लगेगा ही लगेगा, प्लस और कितना पीरियड लगेगा तो वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे आएगा? इन्वेस्टमेंट माइनस क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो ऑफ बेस ईयर अपॉन कैश इनफ्लोज ऑफ नेक्स्ट ईयर। डू यू एग्री? डू यू एग्री? यस। तो अभी हम लोग करते हैं सेम वर्किंग करते हैं हम लोग। बेस ईयर कितना है? 3 प्लस अभी इन्वेस्टमेंट कितना है बताओ मुझे? 20 lakhs। लेस क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो ऑफ बेस ईयर कितना है? 17 लाख। करेक्ट, अपॉन कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट 25 ईयर। लाख। नहीं नहीं, कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर 25। 8 लाख। 8 लाख। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो नहीं बोला, क्या बोला अच्छा। है? हाँ, कैश इनफ्लोज ऑफ नेक्स्ट ईयर मतलब ये। ओके। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है एंड ये इंपॉर्टेंट है एंड ये इंपॉर्टेंट।
सर ये हम लोग स्टैटिस्टिक्स में करते थे, सेम सेम है ना, सेम, बस करेक्ट फ्रीक्वेंसी वाला। करेक्ट। लेकिन मैंने क्यों नहीं बोला, नहीं तो आप स्टैटिस्टिक्स बोला तो कोई लोग डर जाते हैं, तो इसके लिए मैंने सोचा लेट अस नॉट टॉक अबाउट। ओके सेम सेम, सिर्फ यहाँ पे अपना टर्म्स बदल गया बिकॉज हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके लिए सब बेस ईयर इन्वेस्टमेंट ब्ला 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 फिगर्स है, वो सीएफ अपॉन वो सब करते थे ना, वही है इनडायरेक्ट। तो ये कितना आएगा, 3 प्लस 3 लाख अपॉन 8 लाख। 3.375. 3.375 ईयर्स। इसका मतलब क्या है, आपको 3.375 ईयर्स में आपका पैसा क्या मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। सर इधर ऊपर हम लोग ने 2.5 आंसर निकाला, इसलिए इधर हम लोग बेस ईयर 3 पकड़ रहे हैं ना। नहीं, उसका कुछ कनेक्शन नहीं है, वो तो अलग ही सम है ना पूरा। देन हम लोग ने ऐसा ही 3 लिया क्या? क्या? नहीं नहीं, ये दिखा ना हमने, कौन से 2 साल के बीच में ये हुआ बताओ, ये मैंने सिंबल निकाला है, वो दिखा। 3 and 4 वाला। ओके। हाँ, 3 and 4 के बीच में 20 लाख है, देखो इधर में। हम्म, समझा समझा। समझा ना? देखो आपको क्या चेक करना है, 20 लाख किस दो फिगर्स के बीच में आता है, तो इट फॉल्स बिटवीन दीज टू। इसके लिए ये दोनों में से अभी 3 4 में से जो पहला है उसको बेस ईयर पकड़। 3 प्लस, देखो इन शॉर्ट लॉजिक क्या मैं बताता हूँ, 3 साल में मैंने 17 लाख कमाए, बराबर। तो और 3 लाख कमाने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, 1 नेक्स्ट year। साल में मैंने 8 लाख कमाए, तो 3/8 which comes to 0.375 plus 3, that is 3.375। और मैथमेटिकली भी निकाल सकते हो, ये सब फॉर्मूला विर्मूला बोलने की भी जरूरत नहीं। वो मीडियन वाला है, मीडियन वाला। यस यस यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। यस। एक काम कर लो, इधर तक का ये एग्जाम्पल के साथ लिख लो, फिर हम लोग आगे जाते सर किधर से? बी से? ये ए का एग्जाम्पल नहीं लिखा सर, समझ के वो दोनों। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। हम्म, हाँ, तो आप सीधा ये एग्जाम्पल, हाँ ये सेकंड से ही स्टार्ट करो, पे बैक पीरियड से। सिर्फ फॉर्मूला लिखो, पे बैक पीरियड कैश इनफ्लोज यूनिफॉर्म ये, फिर कैश इनफ्लोज नॉट यूनिफॉर्म ये वाला। ओके, सम नहीं लिखना है सर? सम लिखो, या फिर एक में कर सकता हूँ, इधर में फिगर चेंज कर दूं, आप वापस सॉल्व करोगे। हाँ हाँ। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, आप यहाँ से लिखना शुरू कर दो, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी का फॉर्मूला लिखो, फिर इसका फॉर्मूला लिखो, ये सम जस्ट फॉर योर रेफरेंस। नहीं, सम नहीं लिखा तो भी चलेगा, पहला वाला समझाना आपको। हो हाँ, गया लिख के। इधर मैं एक काम करता हूँ, फिगर चेंज कर देता हूँ, फिर आप उसका आंसर फाइंड आउट। सर ये क्वेश्चन में भी उन लोग ऐसे ही देंगे? क्वेश्चन में ये कॉलम नहीं रहेगा, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट देंगे एंड कैश इनफ्लोज देंगे। तो आगे का आप आंसर निकाल।
आ गया सर आंसर। हो गया? हाँ कितना है? 4.75। 4.75। बाकी लोगों का कितना है? क्या है बाकी लोगों का आंसर? सर मुझे 3.33 आ रहा है। 3.33 आ रहा है। ओके। यस सर 3.33। अरे सबका एक आ रहा है, ठीक है, चेक करें। यस। एबी का क्या है आंसर? एंड शिवाजी का क्या है? वो है सर, सेम है। शची वाला या बाकी लोगों का? सच्ची वाला। शची वाला है, ओके। शिवाजी? सर 3. 3 ओके। ना ओके, सब लोग ध्यान दो। अभी 25 लाख का इन्वेस्टमेंट है एंड कौन से 2 साल के बीच में आपने 25 लाख का इन्वेस्टमेंट वापस कमाया, मतलब वापस अपने पास आ गया? 3rd and 4th year। 3rd and 4th ईयर, राइट? तो ये 2 साल के बीच में आपको इन्वेस्टमेंट वापस मिल गया, मीन्स आपका पे बैक पीरियड ये दोनों के बीच में होना चाहिए। डू यू एग्री? हाँ यस सर। डू यू एग्री? अब ये दोनों में से बेस ईयर किसको पकड़ेंगे? 3। 3 सही पकड़े हैं। मेरा भी अभी 3 पॉइंट आ रहा है। एंड अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? क्यूमुलेटिव कैश फ्लो ऑफ बेस ईयर एंड कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर, राइट? तो 3 प्लस इन्वेस्टमेंट है 25 lakhs लेस cumulative cash inflow of base year 21 lakhs upon cash inflow of next year, that is 12 lakh. 3.33। 3 plus 4 lakhs by 12 lakhs 1/3 रहेगा सर। wait. Yes, 1/3. So answer कितना आएगा? 3.33 years. Do you agree? यस। Yes. आ गया ये आंसर? हाँ सर। वेरी गुड। सर मैं कैलकुलेशन मिस्टेक किया, अभी आया। Maybe कैलकुलेशन मिस्टेक। calculation mistake. Abhi, but everyone is able to identify which year should be considered as a base year. यस सर। Yes. Very good. Okay. Abhi, there is one more concept of payback reciprocal, but that is not specifically given in your syllabus. But just I will explain for you. Payback reciprocal. इन्वेस्टमेंट का अमाउंट पर्टिकुलरली कंप्लीटली एक क्यूमुलेटिव में नहीं आएगा कभी? नहीं, हाँ, देते वक्त वो कभी कभी कैसे देते मैं बताता हूँ आपको।
0 ईयर लिख के निगेटिव 25 लाख दिखाते हैं। इसका मतलब है 0 ईयर मतलब फर्स्ट डे इनिशियली आई हैव पुट इन नेगेटिव 25 लाख। नेगेटिव 25 लाख मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट किया मैंने 25 लाख एंड उसके अगेंस्ट ये मुझे कैश इनफ्लोज मिला 3 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख एंड 9 लाख। Are you getting it? Yes. Yes. तो उस हिसाब से हम लोग जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो में नहीं लेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी विल सॉल्व द सम। Okay. बस वो ये समझा मुझे। हाँ मतलब अभी जैसे 21, 23, 33 के बीच में 25 आ रहा है ना, वैसे हाँ कम्प्लीटली 25 ऐसे नहीं आएगा कभी। आ सकता है, आ सकता है। तो उस केस में सपोज इधर 25 हो गया सपोज, तो आपका आंसर 3 इयर्स होगा। पूरा कंप्लीट आंसर 3 होगा। 3 होगा बिकॉज थर्ड ईयर में मैंने कंप्लीट कर दिया ना पूरा 25 लाख, बराबर समझ। तो 3 साल मेरे लिए पे बैक पीरियड रहेगा। तो फॉर्मूला ही नहीं लगाने का ना सर? तो फॉर्मूला नहीं लगाने का, तो सीधा बोलने का 3 इयर्स इज माय पे बैक पीरियड। ऑलराइट, ये लिख लिया सबने? यस। तो अभी मैं और एक कंसेप्ट आपको बता रहा था, पेबैक रेसिप्रोकल। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ पेबैक, मतलब 1 अपॉन, रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स कर देने का, 3.33। सो 1 अपॉन 3.33 दैट विल टेल यू एवरी ईयर आप कितना अप्रोक्सीमेटली कैश इनफ्लो जनरेट कर रहे हैं। हाँ, तो 1 अपॉन 3.33 मतलब कितना आएगा बताओ? परसेंटेज में निकालो। 30%। लगभग 30% कैश इनफ्लोज हम लोग हर एक साल जनरेट कर रहे हैं। तो अगर आपको बताना है कि हर एक साल मेरा कैश इनफ्लोज कितना है, मतलब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ हर एक साल मुझे 30% मुझे रिटर्न मिलता है, तो उसके हिसाब से 3 इयर्स 30 90 प्लस 10 मतलब 1/3, तो 3 इयर्स एंड 1/3 पीरियड में मैंने क्या कर दिया, मेरा पे बैक पीरियड मतलब पूरा अमाउंट रिकवर कर दिया। ऑलराइट, सर मतलब 25 lakhs का 30% निकालने का ना? नहीं, हाँ 25 लाख का 30%, वो आपको एवरेज रिटर्न मिल जाएगा। मतलब ऑन एन एवरेज आपको कितना कैश इनफ्लोज होगा, तो 7,50,000 पर एनम। हाँ सर। Okay. यस। एंड लास्ट मेथड है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या? इट इज द देखो अभी तक के दोनों मेथड्स में हम लोगों ने क्या देखा, कैश फ्लो देखा, कैश इनफ्लो कितना था, कैश आउटफ्लो कितना था। ये मेथड में हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे, मतलब हमारे लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन हम लोग क्या लेंगे, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे। यहाँ पे जो ले रहे हैं वो क्या है, कैश इनफ्लो है। कैश इनफ्लो एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में फर्क क्या है? कैश इनफ्लोज में हम लोग जो जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर लाइक डेप्रीसिएशन है वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन जो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें हम लोग पूरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जैसे हम लोग रेगुलर स्टेटमेंट बनाते हैं, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, ईबीटी लेस टैक्स करके हमारा फाइनल आंसर आता है। तो वैसे हम लोग एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, दैट विल गिव अस द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन इसमें एक अल्टरनेट फॉर्मूला भी है, एंड वो अल्टरनेट फॉर्मूला क्या है, तो अल्टरनेटिवली you consider average profit after tax upon average investment। अभी average investment मतलब क्या, बिगिनिंग में कितना इन्वेस्टमेंट था, एंड में कितना इन्वेस्टमेंट है, दोनों का एवरेज। अभी जैसे ये सम आपको क्लोजिंग में कितना इन्वेस्टमेंट है वो दिया ही नहीं, दैट मीन्स आपका मशीनरी या जो भी था वो स्क्रैप हो गया, तो हम लोग 25 लाख प्लस 0/2 मतलब एवरेज 12.5 लाख लेंगे। So instead of taking 25 lakhs, I will consider average investment of 25 lakhs. So 25/2, that is 12.5 lakhs. That would be considered as average investment. All right. So average profit after tax upon average investment into 100, that will give us the accounting rate of return, or it is also known as average rate of return.
लेकिन आप दोनों मेथड्स देखोगे तो जो अल्टरनेट मेथड या पहला मेथड है, दोनों का आंसर सेम आएगा क्या? नहीं, दोनों का इन्वेस्टमेंट आंसर का अलग एवरेज ले। है। यस, तो आप दोनों में से कौन सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड, एनी मेथड यू कैन यूज। आपको बुक में भी दोनों मिलेगा, रेफरेंस बुक में भी दोनों मिलेगा। लेकिन एक चीज याद रखो, जहां पे हम लोग दो प्रोजेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं, इट इज ऑलवेज गुड टू कंपेयर टू प्रोजेक्ट्स हैविंग सेम फॉर्मूला। मतलब ऐसा मत करो कि ए प्रोजेक्ट के लिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया एंड बी के लिए ये फॉर्मूला यूज किया, तो कैन आई कंपेयर बोथ ऑफ देम? नो। तो कंपैरिजन के लिए आपको अल्टीमेटली एक ही फॉर्मूला सिलेक्ट करना पड़ेगा, ईदर एवरेज पैट अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100 और एवरेज पैट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अभी एवरेज पैट कैसे आएगा? आपको 4-5 साल का फिगर्स दिया रहेगा, तो 4-5 साल का जो फिगर्स है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 साल का सपोज प्रॉफिट दिया तो 5 साल का हम लोग टोटल लेंगे डिवाइडेड बाय 5, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ एवरेज इन्वेस्टमेंट, sorry, average profit after tax. So once you get a figure of average profit after tax upon average investment into 100, that will give us the accounting rate of return. सिंपल। तो यहाँ पे जैसे कैश इनफ्लोज दिया, वहां पे आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा, उसका आप एवरेज ले लोगे अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, दैट विल गिव अस द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। बट प्रैक्टिकली ये मेथड उतना ज्यादा यूज नहीं होता। इट इज लाइक योर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जैसे हम लोगों ने एवरेज रिटर्न कैसे निकालते हैं वैसे ही ये मेथड में यूज हो रहा है। इसके लिए ये मेथड बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। और सर इसका सम्स भी बहुत हार्ड आता है। किसका? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का? हाँ, टीवाई में था ना तभी बहुत हार्ड आता था इसका। नहीं, एआरआर का भी आपको इतना पूछेंगे नहीं, बिकॉज यहाँ पे आपका एनपीवी आईआरआर वो सम्स ज्यादा आएगा। ओके। ऑलराइट, इसका एग्जांपल देना चाहे तो आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा, तो सपोज आपका 5 साल का ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, तो आप कैसे करोगे? तो है सबका टोटल ले लेंगे, बराबर। तो एवरेज पैट कितना आएगा? $30 lakhs divided by 6 lakhs. 6 लाख। एंड अपना एआरआर कैसे आएगा? 6 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100, कितना परसेंटेज आएगा? 24. Dot. 24। गॉट इट? कैसे निकालने का? तो आपको एवरेज दिया रहेगा, सॉरी पैट दिया रहेगा, तो एवरेज पैट निकालो एंड डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट करो इनटू 100, सो दैट विल गिव अस द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ऑलराइट, एमसीक्यू में वगैरह ये आ सकता ये आ है। सकता है, एमसीक्यूज में ये पूछ सकते हम्म। तो विद दिस वी कंप्लीट ट्रेडिशनल मेथड्स। हाँ, ये लिख लो,